everyone. So let's discuss the new topic in the series of CDP, and that will help you out in the examination of Super TET and CTET and other state teaching examinations, teachers eligibility test. So in teaching method, it is prepared by teachers for the students, and this is moreover depends on, there are different types of teaching methods. One is teacher centered and student centered. So first of all, I just want to discuss with you regarding teaching methods. So if a child can't learn the way we teach, we should teach the way they learn. इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि टीचर के अकॉर्डिंग नहीं समझ पा रहा है, तो उसे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें टीच करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा. देन ओनली who will be able to understand. So there are two types of method. One is teacher centered and another one is student centered. In teacher centered approach, moreover, teacher is more, it is on the basis of teacher's understanding, and if it is student centered, then teacher will understand about the psychology of a student, and then only teacher will make the lesson plan and teaching methods accordingly. First of all, जो teacher centered methods होते हैं, so number one, that is lecture method. You have heard about the lecture method, and this is it is like one way communication. Suppose in a class टीचर ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, पर अगर कोई स्टूडेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, दे जस्ट गिव द लेक्चर्स, और जो भी अपनी क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लेके डिस्क्राइब करते हैं, तो वो एक लेक्चर मेथड होता है. बट ये जो नर्सरी क्लास या फिर प्री नर्सरी या फिर जूनियर लेवल, नर्सरी से 8th या 10th तक के लिए ये मेथड जो है वो मतलब अच्छा नहीं होता है. ये जो है जनरली हायर लेवल एजुकेशन के लिए होता है, या फिर 10th प्लस स्टूडेंट्स के लिए जो मेथड होता है वो लेक्चर मेथड जनरली यूज़ करते हैं. अदरवाइज हम जो है जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है और जो प्री नर्सरीज के लिए होता है वो क्लासरूम मेथड अप्लाई किया जाता है. सो दिस इज आई हैव मेंशन्ड हियर इन द फिगर. It is for moreover for 12th class and on the other higher education thing, and fact, it is moreover on the basis of fact and explanation, and if I am talking about conversation were less, teacher active होते हैं and जो children होते हैं वो passive होते हैं इस method में, and जो students होते हैं वो carefully सुनते हैं और उसके बाद वो अपना एनालिसिस बनाते हैं. बट दिस इज़ नॉट मोर इफेक्टिव फॉर जूनियर क्लासेस. So I have mentioned here in lecture method that it is a formal method, and it is moreover facts based, and it is moreover exploration of the problem, and there are merits and demerits of teaching method, and which is mentioned here. So merits are, it is moreover economical and resources कम लगते हैं इसमें, और students जो होते हैं, number of students, ज़्यादा students को पढ़ा सकते हैं, and उसके अलावा जो है एक teacher sufficient होता है. apart from this जो है time saving होता है ये method, and cover the syllabus timely, जो timely syllabus होता है वो cover हो जाता है. एंड टास्क बेस्ड होता है कि हाँ एक पर्टिकुलर, सपोज एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, या सपोज मैं एक वीडियो में ये क्या बोलते हैं टीचिंग मेथड का पूरा लेसन कंप्लीट करूँगी जनरली, जो कि अगर आप फैकल्टी से पढ़ोगे तो वो कम से कम भी नहीं तो 3 या 4 क्लास में होता है. बट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिविजन थिंग and just want to save the time of students, I am preparing this in hardly 15 minutes of video, and then once you will prepare your own notes and you will revise it with this video, that will help you out. And there is a suggestion from my side, आप एक अपना अलग से वीडियो भी बना के एक्सप्लेन करके उसको आप बाद में देख सकते हो, तो कि आपकी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक सस्टेन करेगा वो.
accordingly. So let's on the next point. So important talk about important facts. जो lecture method होता है, important जो टॉपिक्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं पे डिस्कशन किया जाता है. जो इसकी डीमेरिट है या लिमिटेशंस आप कह सकते हो. डीमेरिट यही होती है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है और इसमें जो टीचर होता है मोर ओवर वो टारगेट सेंटर्ड होता है. जो इसकी लिमिटेशंस है, चाइल्ड विल बी लिमिटेड एक्टिवेटर और यू कैन से लिमिटेड एक्टिव एंड वी कैन कॉल इट पैसिव चाइल्ड अप्रोच. अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो है कभी कभी इंटरेस्ट कम लेता है. और अपार्ट फ्रॉम दिस इट सेपरेट्स इंडिविजुअल टीचिंग. जो सेपरेट इंडिविजुअल टीचिंग है उसको मतलब सेग्रीगेशन कह सकते हो आप कि वो करता है. सो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, so second type is team teaching method. This is more effective. I have seen where there is group of teachers, they are taking the classes continuously and trying to complete the syllabus. But there are some merits and demerits of both of the things. So let's discuss about team method first and then I will explain about merit and demerits of it. सो ये जो है लार्ज ग्रुप के द्वारा पढ़ाया जाता है. टीचिंग मेथड जो होता है, लार्ज ग्रुप होते हैं या टू और मोर देन 2 या 4 टीचर्स होते हैं जो कि एक ग्रुप में आते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ये मोर ओवर इनोवेटिव होता है. एग्जीक्यूशन जो होता है इसका वो एक सर्टेन जो प्लेटफॉर्म में एक सर्टेन प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. एंड जो इवेल्युएशन होता है, एक टीचर दूसरे टीचर का इवेल्युएशन भी इजीली कर सकता है. तो उसमें क्या होता है कि जो भी गलतियों की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. या फिर एक टीचर दूसरे टीचर से सीखता भी है तो स्टूडेंट्स को और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है. सो दिस इज मोर ओवर आई कैन से कंपटीशन भी आ जाता है इसमें. और जो एक्सप्लेनेशन एबिलिटी होती है टीचर की वो काफ़ी इन्हेंस हो जाती है. सो बट देर आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड एंड सो द मेरिट्स इज मीट बेस्ट टीम फैकल्टी. जो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाता है किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी सब्जेक्ट को लेके, एक पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएट किया जाता है. सो आपको बेस्ट फैकल्टी चूज करके आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सो दैट विल हेल्प यू मोर. अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टी टीचिंग अपॉर्चुनिटी होगी कि डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी. किसी टीचर का मेथड बहुत स्टोरी टेलिंग वाला हो सकता है, किसी का जो मेथड होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है. एंड अकॉर्डिंगली आई हैव एक्सप्लेन्ड कि टीचिंग मेथड जो टीचिंग का मेथड है या फिर जो टीचिंग का पढ़ाने का जो तरीका है टीचर्स का वो इम्प्रूव होता है बिकॉज ऑफ दैट इंट्रैक्शन विद इन द टीचिंग टीम. बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम डीमेरिट्स ऑल्सो एंड इट इज लाइक बिकॉज एक ग्रुप बनाने के लिए इट शुड बी मोर लाइक टीचर शुड बी मोर कंपैटिबल टू ईच अदर. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द बेस्ट टीचर टू मेक अ ग्रुप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही डीमेरिट होती है. उसके बाद होता है टीचर, जो नंबर ऑफ टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड सब जो है सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं होता है कि डिफरेंट टीचर्स आके आपको पढ़ा रहे हैं, तो सबके लिए अप्लाई नहीं होता है ये. एंड इसके लिए जो भी प्लान वगैरह जो बनाते हैं और डिलीवरी जो होती है लेक्चर्स की, उसके लिए जो टाइम होता है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. सो कलेक्टिवली देर आर सम मेथड्स, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम क्या कहते हैं, टीवी मेथड या प्रेजेंटेशन पीपीटी मेथड यूज़ करते हैं. यूट्यूब के थ्रू हम जो है देखते हैं कि कोई बहुत सारे आजकल मैराथन्स रन करते हैं टीचिंग चैनल्स. सो दिस इज मोर ओवर द वे ऑफ प्रेजेंटिंग this kind of method, team teaching method. And we can say that जो young learners होते हैं
उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। एंड बट हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप टीम टीचिंग मेथड में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा सके। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को आप ग्रुप टीचिंग मेथड या टीम टीचिंग मेथड में आप पढ़ सकते हो, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. So someone will take the segment of mapping, someone will take the physical geography, someone will take world geography, and there could be a segmentation of that. But in team teaching method, again this is one way communication. So third type of teaching is teacher teaching centric method, and this is also called group discussion. I hope you all have heard about group discussion, what group discussion is all about. So this is you can say we can do it in a small group and large group also. So it depends on. And जो ये टर्मिनोलॉजी है वो ग्रीक और नालंदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई की जाती थी कि ग्रुप डिस्कशन के लिए पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाए जाते थे, या तो किसी बच्चे के ग्रुप में से एक बच्चे को हेड ऑफ द ग्रुप बना दिया जाता था, या फिर टीचर एक मॉनिटर की तरह, या फिर एक यू कैन से एक ग्रुप लीडर की तरह वॉच करता था क्लोजली, और उसके बाद जो भी प्रॉज एंड कॉन्स और जो डिस्कशंस होते थे और उसी के अकॉर्डिंग गाइड किया जाता था इसमें. So first of all, it is moreover democratic because everybody will try to present their views. So moreover, it is democratic to develop understanding. इससे जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अच्छे से डेवलप होती है. ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है कि अगर कोई जो ग्रुप लीडर है वो असेसमेंट कर सकता है, या फिर टीचर जो मॉनिटर कर रहा है हेड ऑफ द मॉनिटरिंग, सो वो क्या बोलते हैं उसका फीडबैक इजीली दे सकते हैं. Apart from this, it is moreover child centered because जो students होते हैं they will interact with each other, so this is moreover child centered. And there are different types of group discussions, and let me show you types of group discussion. So number one, this is classroom discussion, and it is moreover child centered and informal होता है, नॉट टू लार्ज, बहुत बड़ा नहीं होता. बड़े ग्रुप्स में भी हो सकता है और छोटे ग्रुप्स में भी हो सकता है. सो इसमें क्या होगा कि चाइल्ड जो टीचर्स होंगे वो किड्स को टॉपिक देंगे. अगर क्लासरूम डिस्कशन में जैसे हेड टीचर या फिर टीचर जो होते हैं वो अपना व्यू देते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक देते हैं, तो जो डिस्कशन होता है क्लास को दो ग्रुप्स में बांट देते हैं. वन इज प्रोवाइडिंग द positive point of that topic, and another group is providing the negative point of that topic. Accordingly, टीचर लीडर के रूप में काम करता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन. एंड मोरओवर अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर वो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा. बट इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को मोरओवर इंटरेक्टिव बनाने के लिए कभी कभी बच्चों को भी उसमें लीडर बना देते हैं, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी. Okay, so apart from this, there are different kind of groups. That is formal group, and in formal group there are like minimum and maximum both. छोटे ग्रुप में भी हो सकता है और बड़े ग्रुप में भी हो सकता है, और दो से जैसे किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी का डिस्कशन करने के लिए 2 से 3 मिनट दे दिए जाते हैं. अकॉर्डिंगली जो इसके लिए जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कभी कभी पे चेयरपर्सन अपॉइंट कर देते हैं, एंड उसके लिए जो मतलब चेयरपर्सन होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं, फॉलो करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं पूरे प्रोसेस को. सो ग्रुप डिस्कशन मोरओवर it is like the most important this is like the most important part of group discussion. First of all, प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ओके, ग्रुप डिस्कशन के लिए. उसके बाद एक पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. दिस इज लाइक आई थिंक देयर इज ये उद्देश्य है और ये एक्सपीरियंस है. सो एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके बाद उसको कंडक्ट कराने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक सीक्वेंस
सीक्वेंसिव वे में होना चाहिए वो. सो अकॉर्डिंगली we will just jumping in the merits and demerits of the group discussion. So first of all, I will explain you about merits of the group discussion. That's actually a very effective way while students are interacting with each other, and it will increase the thinking process. जो भी है स्टूडेंट्स का या बच्चों का जो है थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाता है. क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है कि अगर किसी भी टॉपिक को दिया जाता है, सपोज चाइल्ड एजुकेशन या फिर गर्ल्स एजुकेशन, आप कोई टॉपिक दे सकते हो, एंड टेक्नोलॉजी के बेस, साइंस के बेस कोई टॉपिक दे सकते हैं क्लास में डिस्कशन के लिए. सो स्टूडेंट्स अपना जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप करेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताएंगे, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उनको करेक्ट कर सकते हो अगर कहीं पे भी वो गलत हैं या फिर उनके थॉट प्रोसेस में आपको चेंज लाना चाहिए. सो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंक्रीज द नॉलेज एंड आइडियाज फॉर फीलिंग्स. किसी भी यस, सो अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नॉलेज को बढ़ाता है. किसी भी टॉपिक को लेके एक अपने जो व्यूज रखने होते हैं, तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. दे आर प्रेजेंटिंग देयर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड दैट विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देम. अपार्ट फ्रॉम दिस, लर्निंग टुगेदर जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाता है कि एक टीम में काम करना. सपोज एक क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड करके आप अगर ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हो, तो एक टीम बिल्डिंग जो है अप्रोच है वो डेवलप होती है. और जो स्टूडेंट्स में जो पब्लिक स्पीकिंग कह सकते हैं या जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाता है. एंड जो टीम स्पिरिट, टोल्ड यू, टीम स्पिरिट डेवलप होती है. एंड उन्हीं बीच में से आप जो है टैलेंट डिस्कवरी भी कर सकते हो कि हु कैन डिस्क्राइब द थिंग्स इफेक्टिवली. So, but there are some demerits also of this group discussion, but demerits are very less. So, because it is more time taking. क्योंकि अगर सपोज कोई डिस्कशन चल रहा है तो आप उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हो. अगर हाफ एन आवर का डिस्कशन है और डिस्कशन थोड़ा लंबा चलता है तो फिर इट विल टेक मोर टाइम फॉर द कंक्लूजन, बिकॉज विदाउट कंक्लूजन आप दोनों ग्रुप्स में से अपना कंक्लूजन देके उसको मिडवे में नहीं छोड़ सकते हो. सो दैट वी कैन कॉल इट मोर टाइम टेकिंग. इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कभी कभी के, कोई अगर किसी चीज़ पे एग्री नहीं हो रहा है तो फिर एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट बढ़ने लग जाते हैं. इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है अगर किसी को किसी टॉपिक पे ऑफेंडेड फील हो सकता है, या फिर बहुत ही डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है. एंड सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो इसमें कवर करना भी पॉसिबल नहीं है. So this is the second part, child-centered method. So earlier I discussed with that is teaching-centered or teacher-centered, teacher-teaching-centered method, but this is the child-centered. इसमें क्या होता है कि first of all मैं आपको बताना चाहती हूँ कि brainstorming में क्या होता है. So brainstorming is a continuous process. It is more creative. Active member will take participation on that and invite children ideas. जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में होता है, एंड इनिशिएटिव ले सकता है. जो चिल्ड्रंस होते हैं चिल्ड्रन होते हैं दे कैन टेक इनिशिएटिव, एंड दे विल बी 2 टाइप्स ऑफ थॉट्स. इसमें सही थॉट्स भी आ सकते हैं और गलत थॉट भी आ सकते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन. बट ब्रेन स्टॉर्मिंग में इट कुड बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ. It has some advantages and disadvantages also. So let's discuss the advantage. इट इज़ लार्ज पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का. उसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो सकता है, और बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है. दे कैन थिंक डिफरेंटली, दे कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, दे कुड बी मोर क्रिएटिव, एंड इकोनॉमिक भी होता है, ये इकोनॉमिकल होता है. देयर आर सम डिमेरिट्स ऑल्सो. दिस इज मोर ओवर लाइक सिस्टमेटिक नहीं होता बेसिकली, बिकॉज
उसमें क्या होता है कि सपोज कोई कोई जो बच्चा है वो बहुत जल्दी सीख पा रहा है, कोई बहुत देर से सीख पा रहा है, तो हमें एक क्लास में बच्चों को जो है एक साथ लेके चलना पड़ता है. दैट्स व्हाट इट इज अनसिस्टमैटिक, वी कैन से इट इज अनसिस्टमैटिक. Again, this is also a very important type of teaching, that is role play. And आपने देखा भी होगा कि क्लास में रोल प्ले when we were students, and there are some topics, some biographies जिसमें कि रोल प्ले करा के आपको कोई भी चीज़ रियल लाइफ बेस्ड जो होता है उस पे आपको क्या कहते हैं, उसमें आपको एक कैरेक्टर दिया जाता था, then you need to play that character and then you can learn, and the class involvement is quite good. So उसमें क्या होता है, रियलाइजेशन होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स सीखते हैं. उसके बाद ड्रामा, जैसे वी कैन कॉल इट एज ड्रामा, मे बी जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Swami Vivekanand. So there are very great personalities in history. उनके ऊपर ड्रामा या फिर जो प्ले होता है वो स्कूल टाइम में क्रिएट किया जाता है टू इंक्रीज दैट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. इट हैज़ ऑल्सो सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज होता है कि रियल लाइफ सोल्यूशंस मिलते हैं, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और वो जो बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेशन बहुत ही खुशी से करते हैं, एंड मोर ओवर मोर इंटरेक्टिव, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, एंड it is having only like a single demerit, or you can add few, but there are very limited demerits. So ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. कभी कभी होता है कि रोल प्ले उस तरीके से हो नहीं पाता जिस तरीके से हम इमेजिन करते हैं. सो दिस इज द ओनली डिमेरिट. नेक्स्ट मेथड इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. You have seen nowadays when this is the era of electronic and जो भी क्लासेस होती हैं, जैसे यूट्यूब में हम देखते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है कि आपको पहले कोई चीज़ दिखा देते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, जैसे किसी भी बच्चे को कॉन्सेंट्रेट किसी चीज़ पे किया जाता है, कॉन्सर्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह से, जो कि मूर्त और अमूर्त शिक्षा दोनों पर बल दिया जाता है, जैसे कि कॉग्निटिव इफेक्टिव होता है साइकोमीटर. इसमें जैसे किसी चीज़ को दिखाया जाता है, उसके थ्रू कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, जैसे केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिजिक्स की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. सो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन आजकल चल रहा है वो नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है कि इसके थ्रू हम किसी भी जैसे कोई